So basically when we talk about zeroth law, I'll repeat the zeroth law again. There are three systems, A, B and C. If A is in thermal equilibrium with B, and if A is in thermal equilibrium with C, then C will be in thermal equilibrium with B. Are you clear with what I said? Yes. So this is what is zeroth law. That दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो सिस्टम तीसरे वाले से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तीसरा वाला और दूसरा वाला अपने आप एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. दिस इज व्हाट द zeroth law एक्सप्लेन यू. और zeroth law के बेसिस पे ही आपका थर्मोमीटर काम करता है. जब आप मर्क्यूरी थर्मोमीटर या थर्मोमीटर को जब अपने माउथ में लेते हो या कहीं पर इंसर्ट करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, जो मर्क्यूरी है वो आपकी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है उसका एक्सपांशन रुक जाता है, एंड यू कैन चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सो थर्मोमीटर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ zeroth law. Did you got my point? Yes, ma'am. Clear? Now just write it away, लिख लो. Draw this diagram. Give the heading as zeroth law. Draw this diagram and write down. लिखो. If two systems are in thermal equilibrium with the third system, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. If two systems are in thermal equilibrium with each other, if two systems are in thermal equilibrium with each other, then third system then third system sorry, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. लिख लिया? Done? Done, ma'am. And thermometer, next point, thermometer works on this principle only. Thermometer works on this principle only. Got this?
Yes. Okay. Next. We are going to understand some terms. Those terms are what is system, what is surrounding. So basically जिस चीज पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो वो आपका सिस्टम होता है और उस चीज को छोड़कर बाकी जितनी चीजें होती हैं वो सराउंडिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब इज योर सिस्टम और उस टेस्ट ट्यूब को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें आजू बाजू है एवरीथिंग इज अ सराउंडिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. एंड देयर इज अ इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. देयर वहां पर एक इमेजिनरी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, so this is all about system and surrounding. Now system can be of three types. What are those three types? Open system, ये सब आपने केमिस्ट्री में किया है. Closed system Isolated system. and isolated system. So basically what is open system? Open systems are those systems जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकता है. जैसे कि आपने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया एक खुले टोप में, तो जब पानी बॉईल होगा तो वहां पे पानी एवापोरेट होगा गैस बनकर और साथ में उसकी एनर्जी भी बाहर रिलीज होगी. तो ऐसा सिस्टम इज ओपन सिस्टम जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes. वेयरएज क्लोज सिस्टम, आपने उसी पानी के उसी कंटेनर को अगर आपने ढक दिया, अगर आपने उसी कंटेनर को ढक दिया तो एनर्जी एक्सचेंज होगी पर जो पानी एवापोरेट हो रहा था वो रुक जाएगा. मतलब मैटर विल नॉट गेट एक्सचेंज, ओनली एनर्जी विल गेट एक्सचेंज्ड. डिड यू गॉट माय पॉइंट? एंड द आइसोलेटेड सिस्टम इज योर थर्मस. ना वो जल्दी एनर्जी एक्सचेंज करने देगा और ना तो मैटर एक्सचेंज करने देगा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. So give the heading as system and draw this particular diagram. And right. System can be defined as the system can be defined as the system can be defined as
The part of the surrounding. The system can be defined as the part of the surrounding where the experiment or observation is being done. The system can be defined as the part of the surrounding where the experiment and the observation is being done. The system can be defined as the part of the surrounding where the experiment or observation is being done. Done. Done, ma'am. Yes. Next is surrounding. Anything that is not part of a system. Anything which is not a part of a system anything which is not a part of a system is called surrounding. Got this? Yes. Next, the imaginary boundary between the imaginary line between system and surrounding is a boundary. The imaginary line between system and surrounding is a boundary. Done? Yes, ma'am. Okay. Now write down open system, closed system and isolated system. ये तीनों टाइप का डेफिनेशन खुद से लिखो. ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है. क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है और आइसोलेटेड में दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता. राइट डाउन बाय योर ओन. Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done, Akshay? No, ma'am, I'm writing. Okay. Done, ma'am. Done? Okay. Next is flow of energy between system and surrounding.
Ts is the temperature of system. And T is temperature of surrounding, but I am writing temperature of environment. क्योंकि TS फिर confuse होगा. So environment is basically surrounding. Is this clear? Yes. So basically, if Ts is greater than TE, अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरमेंट से ज्यादा है तो होगा क्या? देयर विल बी लॉस इन द हीट एनर्जी, राइट? Ts से TE में एनर्जी जाएगा. और आपका जो सिस्टम है, हमारे लिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टम में क्या हो रहा है मैटर वो करता है. सो ऑलवेज इन फिजिक्स our main focus will be our system. Are you getting my point? Yes. So basically जब मेरी एनर्जी लॉस होगी सिस्टम की तो I'll write Q is smaller than 0. Did you got my point? Yes. समझा? क्योंकि मेरे सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है. If T is greater than Ts, so what will happen? एनवायरमेंट से एनर्जी अंदर की तरफ आएगी. So I'll write Q as greater than 0. That is I'm gaining the energy. Are you understanding? Yes. And agar something is in thermal equilibrium, the system and surrounding is in thermal equilibrium, then Q is equals to 0, means there is no exchange of heat. There is no exchange of energy. Did you got my point? Yes. So you have to keep it in mind that whenever system से कुछ कम हो रहा है, system is your pocket. System से अगर कभी कोई चीज लॉस हो रही है किसी भी रीजन से, आपको वो नेगेटिव लेनी है. ये फिजिक्स का साइन कन्वेंशन है. केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा चलता है फिजिक्स के कंपेयर में. फिर थर्मोडायनेमिक्स में एक ही प्रॉब्लम है कंसेप्ट दोनों सेम ही. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर सेम, बस दोनों के देखने के नजरिए की वजह से साइन कन्वेंशन पूरा उल्टा हो जाता है. तो आप लोगों को जो इजी लगता है वो साइन कन्वेंशन फॉलो करो. मेरे हिसाब से मुझे फिजिक्स वाला इजी लगता है, इसलिए आई रिमेम्बर फिजिक्स वन. सो मैं ये सोचती हूँ कि अगर सिस्टम से कभी कुछ लॉस हो रहा है किसी भी रीजन से, एनीथिंग इज बीइंग लॉस फ्रॉम द सिस्टम, मैं सिस्टम को अपना पॉकेट समझती हूँ. अगर मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है तो मुझे दुख होगा, और दुख होगा मतलब दैट इज अ नेगेटिव साइन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. सो जब भी सिस्टम से कुछ लॉस होगा मैं ये सोचूंगी कि भाई मेरा लॉस हो रहा है एंड दैट्स अ नेगेटिव. आई विल ऑलवेज टेक नेगेटिव इफ देयर इज सम लॉस विद द सिस्टम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? सिस्टम इज माय बिजनेस, माय पॉकेट. उस पे वहां पर कुछ लॉस हुआ, आई विल टेक इट एज नेगेटिव. सो जस्ट write down flow of energy between system and surrounding and draw these conditions. Once you're done, let me know.
Done, ma'am. Done. Now give the heading as internal energy. Now, as I said, whenever I'll use something from my pocket, that's a loss for me. Are you understanding what I'm saying? ये concept आप अपने दिमाग में रख लो for physics conventions. Now let's understand with an example. कि समझो आपका एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर there is a piston. ये जो पिस्टन मैं कंसीडर करूंगी and there is a gas inside the cylinder. ये जो पिस्टन मैं कंसीडर करूंगी, this piston will be massless and frictionless. Now why massless and frictionless? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी सी रियल लाइफ में it is not possible. ये जो पिस्टन है इसको मैं मासलेस इसलिए कंसीडर करूंगी कि मैं जो भी एनर्जी लगाऊं वो एनर्जी पिस्टन को पुश करने में यूज नहीं होनी चाहिए. अगर पिस्टन का मास होगा तो मेरी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होगी. मतलब इसके मास में मेरी एनर्जी कुछ यूज हो गया. यू अंडरस्टैंडिंग? व्हेनेवर देयर इज मास, आप जो भी एनर्जी लगाते हो उसमें से कुछ अमाउंट मास के इनर्शिया को ओवरकम करने में चला जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. सो आई विल कंसीडर दिस पिस्टन एज मासलेस. कि मैं जो भी एनर्जी लगाऊंगी मेरा पिस्टन में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. एंड फ्रिक्शनलेस आल्सो, कि आजू बाजू में देयर इज नो फ्रिक्शन, कि मेरी फ्रिक्शन में भी कोई एनर्जी लॉस हो. तो जो भी एनर्जी मैं बाहर से लगाऊंगी वो पूरी की पूरी गैस मॉलिक्यूल को मेरा पिस्टन पास करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. सो अगर मैं पुश कर रही हूँ, इफ आई एम पुशिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो यहाँ पर वर्क डन इज बाय मी. इज फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ पर अपने पॉकेट का कुछ यूज हो रहा है क्या? वी आर यूजिंग समथिंग फ्रॉम आवर पॉकेट? नो. आवर पॉकेट मतलब सिस्टम. When I say when I'm using something from our pocket मतलब सिस्टम. Are you getting? हमारा मेन चीज, हमारा फोकस है सिस्टम. सो अगर बाहर से कोई चीज इसको पुश कर रही है, इफ समथिंग इज पुशिंग फ्रॉम आउटसाइड, वर्क बाहर से हो रहा है, तो सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है. सिस्टम के पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है. जो भी एनर्जी मिल रही है वो उसको बाहर से मिल रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. मतलब यहाँ पर कुछ बिजनेस हो रहा है और बिजनेस में पैसा बाहर से आ रहा है. सो जब बाहर से वर्क डन हो रहा है तो जो आपका सिस्टम है इट विल गेन एनर्जी. Did you got my point? Yes, And when ma'am. it will gain energy, the internal energy will increase. And we know the internal energy depends only on temperature. Internal energy की पूरी dependency क्या है? Temperature पे होती है. Do you remember? U is equals to 3/2 kBT. kB is a Yes. Boltzmann constant. Internal energy totally depends on temperature. ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर. सो इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. दिस मींस टेम्परेचर क्या होगा? Increase होगा. यस, दिस मींस टेम्परेचर विल इंक्रीज. Now the next condition is, again if I have a piston और वो पिस्टन के जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो काम कर रहे हैं एंड दे आर पुशिंग द पिस्टन आउटसाइड. अब यहाँ पर मुझे मेरे पॉकेट से पैसे लगाने पड़ रहे हैं. दिस इज माय पॉकेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो जब गैस मॉलिक्यूल्स को काम करना पड़ रहा है
that is gas molecules are pushing the piston. तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या लॉस होगी? लॉस होगी। एनर्जी यूज कर रहा है, यस, देयर विल बी लॉस इन इंटरनल एनर्जी। सिस्टम ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा। So the temperature will decrease. Did you got my point? समझा? Yes, ma'am. यस मैम। Give the heading as internal energy and write this. डन मैम। Done with the whole part. Next is positive work done and negative work done. Again the same phenomena. अगर अभी मैंने समझाया कि दिस इज अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, एंड अगर बाहर से कोई पैसा दे रहा है तो आई विल बी हैप्पी। मेरे पॉकेट से मेरे सिस्टम से पैसा जा रहा है, आई विल बी सैड। एंड जब भी मेरे सिस्टम से पैसा जाएगा मैं उस चीज को नेगेटिव लेने वाली हूँ। एंड माई पॉकेट इज माई सिस्टम,
सो अगर बाहर से वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड अगर मेरा सिस्टम खुद काम कर रहा है और उसके पास से पैसा जा रहा है, सो वर्क डन विल बी Negative. नेगेटिव। बट यहाँ पर एक और फंडा है that you need to understand. That thing is, for example, अगर मैं बाहर से चीजों को बाहर की तरफ खींच रही हूं, if I am expanding, so let's understand in that phenomena as well. So if I am expanding, और if I am compressing, वो चीजों पे भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कौन काम कर रहा है वही चीज मैटर नहीं करती, मैटर ये भी करता है कि हो क्या रहा है। For example, if I take the piston, और वो पिस्टन जो है वो एक्सपांड हो रहा है, मतलब माय सिस्टम इज एक्सपांडिंग, चाहे जिस भी रीजन से। माय सिस्टम इज एक्सपांडिंग मींस माय पॉकेट इज एक्सपांडिंग। मेरे पास जो मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपांड हो रहा है, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो दैट पॉइंट कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, दैट डजंट मैटर। मैटर इज वर्क डन विल बी पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सपांशन हो रहा है, if my pocket is expanding, volume is increasing, consider your system as a business is expanding, work done will be positive. If system is compressing, जो आपका volume है वो कम हो रहा है, business is reducing, your work done will be negative. So this is the main phenomena to decide the sign of the work done. Did you got my point? Yes. So whenever there will be expansion, I'll say consider work done as positive. And whenever there will be compression, I'll consider work done as negative. Are you getting my point? Because expansion में volume increases and compression में volume decreases. Got this? Yes. So here volume will decide that whether my work done will be positive or negative. So pocket में पैसे expand होंगे तो of course I'll be happy. So work done will be positive. And pocket में पैसे कम होंगे, volume decrease होगा, so work done will be negative. This is how I consider it. आपका chemistry में पूरा उल्टा लेते हैं. Expansion पे they take it negative and compression पे they take it positive. Did you got my point? Yes. तो आपको अपने हिसाब से लेकर चलना है कि whether you are following chemistry का sign convention और physics का sign convention. So anyone you need to follow. जो भी follow करोगे you'll get the same answer. फर्क नहीं पड़ता sign convention से. But अगर बीच में अगर आपने दोनों का खिचड़ी बना दिया तो you'll get the wrong answer. So मेरे हिसाब से I consider my system as my pocket. My pocket में बढ़ेगा, expansion होगा, work done is positive. Pocket का volume कम होगा, पैसे कम होंगे, work done will be negative. This is I consider my phenomena. Did you got my point? Yes. Yes, sir. Yeah. So write down positive and negative work done and draw this and write this. ये सिर्फ लिख के ले लो as a star mark. So if the things are expanding, I will be happy. If the expanding matlab, you consider your system as a pocket, as I said. If it is expanding, you will be happy. If it is compressing, you will be like volume is decreasing, you will be unhappy. So it will be negative. Connect it with your emotions. Pocket से कुछ loss हो रहा है, then अगर internal energy loss हो रही है मतलब पैसा loss हो रहा है, so that will be negative. Internal energy gain हो रही है मतलब पैसा gain हो रहा है, that will be positive.
Did you got my point? Yes, ma'am. Next is, let's derive an expression for the work done. इसको प्रूफ भी करते हैं, चलो। और तब मैं बताती हूँ कि क्यों केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन उल्टा चलता है। So give the heading as expression for work done. So this is the piston. Sorry, this is the cylinder. There is a massless piston inside. There is a gas molecule. This is area of cross section of a piston. So gas molecule अगर pressure exert करते हैं इसके ऊपर, so we know pressure is force upon area, right? Force exerted by the system. और मेरा piston जो है वो dx amount से बाहर की तरफ ढकेला जाएगा। Now what? I am going to consider that my system is going to expand. Now, अब यहाँ पर क्या फंडा होता है जरा वो देखो। अब आपको समझेगा कि क्यों आपके केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन फिजिक्स के साइन कन्वेंशन से उल्टा चलता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारे लिए जो भी है वो बेसिकली सिस्टम है, राइट? Yes. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है और गैस मॉलिक्यूल वो इस पिस्टन को पुश कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है? दैट गैस मॉलिक्यूल इज पुशिंग द पिस्टन आउटसाइड। और जब ये गैस मॉलिक्यूल पिस्टन को पुश कर रहा है आउटसाइड में, तो मेरा जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ जा रहा है। सो मतलब जिस डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम है, सो विल टेक वर्क डन एज अ पॉजिटिव। डिड यू गॉट माय पॉइंट? समझे? मैम फिर हाँ से या ना? रिपीट करो। आई सेड गैस मॉलिक्यूल्स पिस्टन को बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं और पिस्टन मूव भी बाहर की तरफ ही हो रहा है। डिड यू गॉट इट? Yes. तो जब जिस डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। Yes. सो अगर वर्क डन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस आउटसाइड, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो योर वर्क डन विल बी पॉजिटिव। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके। मैम पिस्टन को एक्सटर्नली नहीं खींच रहे ना? नहीं, पिस्टन को हम एक्सटर्नली नहीं खींच रहे, ओके। हमारा गैस मॉलिक्यूल उसको बाहर की तरफ ढकेल रहे। डिड यू गॉट दिस? यस मैम। और केमिस्ट्री में क्या होता है, वो लोग इस पिस्टन के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, द थिंग इन द टर्म्स ऑफ पिस्टन, कि अगर गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये भी गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कर रहा है, तो पिस्टन के ऊपर फोर्स, पिस्टन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, so they both are in opposite direction, hence they take work done as negative. Did you got my point? Yes, ma'am. Yes. तो हम सारी बातें गैस के टर्म्स में करेंगे, पिस्टन के टर्म्स में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पिस्टन और डिस्प्लेसमेंट दोनों, पिस्टन जो है वो अपोजिट रिएक्शन दिखाएगा अंदर की तरफ, और वो खींचा वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो पिस्टन के ऊपर लगा हुआ फोर्स और पिस्टन की तरफ से लगा हुआ फोर्स और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हो जाता है इन केमिस्ट्री। और हम ये बोलते हैं जिस डायरेक्शन में गैस धक्का मार रही है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। वहीं पे वो जब वर्क डन लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे, वर्क डन इज माइनस पीडीवी, शुरुआती उनकी ऐसी होगी, और हम बोलेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज जिस डायरेक्शन में गैस धकेल रहा है पिस्टन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हम गैस के टर्म्स में बातें करेंगे। गॉट इट? Yes. So here pressure is equals to force upon area, so force is equals to pressure into area। समझो मेरा पिस्टन dx अमाउंट से मूव हुआ है, so dw is equals to force into displacement, right? p into dx। देखो मैंने वर्क डन पॉजिटिव ले लिया, कैन यू सी? Yes. क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जिस डायरेक्शन में गैस एक्सर्ट कर रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, वैसे अज्यूम करके आई एम टेकिंग वर्क डन एज पॉजिटिव। यहीं पर आपका केमिस्ट्री इसको नेगेटिव लेकर चीजों को आगे बढ़ता है। डिड यू गॉट दिस? तो Yes. आपको कोई एक फॉलो करना है, जो भी आप फॉलो करो दैट इज योर फिनोमेना, बट जो भी आप एक फॉलो करोगे आपको वो लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। सो फोर्स आई एम सेइंग एज प्रेशर इनटू एरिया into dx। Now area into dx, area is this and dx is this, this becomes volume, right? area into dx, हमारा एरिया वॉल्यूम का मतलब ही होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. So area into dx is basically your volume, so it is pdv। got this? Yes. So ये तो छोटा अमाउंट हो गया, अगर टोटल निकालना है तो you have to integrate। dw is equals to w is equals to pdv, and volume is going from initial volume to some final volume, so your work done is p integration of vi to vf dv। और अब आप ही देखो, if work done is pdv, अगर dv is the change in volume, so अगर मैंने अभी बोला कि वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो इट विल बी v2 minus v1, राइट? तो अगर v2 बड़ा होगा और v1 छोटा होगा तो यू विल गेट द वर्क डन एज पॉजिटिव। आर यू गेटिंग? Yes. और अगर वो कंप्रेस होगा तो v2 छोटा होगा और v1 बड़ा होगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो एक्सपांशन विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव and compression will be considered as negative. This is how the things work. Got it? Yes, ma'am. Okay. So ये लिख के ले लो, expression for work done and complete this। वहां पे लिख लेना, ये लिख लेना work is done by the system, गैस कर रहा है काम।
Done, ma'am. Done. Okay, the Yes. next heading is first law of thermodynamics. So when I talk about first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल सा फंडा बोलता है, जो कि जिस चीज पे आपकी मोस्ट ऑफ द मशीन्स काम करती है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई टेक एन एग्जांपल कि समझो यू हैव अ व्हीकल, आपने उसमें कुछ फ्यूल्स डलवाया, उस फ्यूल का 60% एनर्जी आपके व्हीकल के इंजन को हीट करने में चला जाता है, और बचे हुए 40% से आपकी व्हीकल आगे की तरफ पुश होती है, मतलब रन करती है. डिड यू गॉट माय पॉइंट? समझा मैंने क्या कहा? Yes. तो ऑलवेज whatever machine you use, whatever, whether it is refrigerator, AC, vehicles, this that, जितनी भी चीजें फ्यूल्स और एनर्जी पे काम कर रही है, उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी उसके इंटरनल सिस्टम में वेस्ट होती है, और बची हुई एनर्जी से आपको काम करके मिलता है. एंड ये जो LG की कंपनीज है, सैमसंग की कंपनीज है, ये लोग आपके इंजीनियर्स को काम क्या कर रहे हैं, what they are doing, what they are giving work to their engineers. वो लोग अपने इंजीनियर्स को पर्टिकुलरली यही काम देते हैं कि आप किसी भी तरीके से ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करो कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े. एफिशिएंसी बढ़े मतलब ये जो लॉस हो रहा है इंटरनल सिस्टम में, वो कम होता जाए, और जो वर्क डन हो रहा है वो बढ़ता जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कैसा हो, क्योंकि पीपल विल प्रिफर दोस व्हीकल्स जिसमें ये लॉस कम हो इंटरनल सिस्टम में, और उसको वर्क डन ज्यादा करके मिले. दैट इज व्हाट वी से कि इसका माइलेज कितना है, उसका माइलेज कितना है, अरे इसका माइलेज ज्यादा है, ये वाला ले. इसका मतलब ये है कि वो कम एनर्जी इंटरनल सिस्टम में लॉस करता है और ज्यादा एनर्जी में आपको काम करके देता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Everyone is trying their best to have such machines. We say we have a 3-star refrigerator, 5-star refrigerator, 3-star ACs, 5-star ACs. ये सारी चीजें उसी चीज पे काम करती है कि आपका इंटरनल सिस्टम में लॉस कम हो और वर्क डन आपको ज्यादा करके मिले. दिस इज व्हाट इज फॉलोड द मोस्ट. सो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर आप सिस्टम को एक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो पहले सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाए और बचे हुए अमाउंट से आपको वर्क डन करके देगा. दिस इज व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Whatever heat energy is given to the system, first it will use it for increasing the internal energy and the remaining part will be used as a work done. मतलब जब आप फ्यूल भरवाते हो, तो वो फ्यूल जब आप ऑन करते हो अपनी गाड़ी, तो वो फ्यूल में से कुछ अमाउंट पहले उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में जाता है, और बचा हुआ फिर आपको वर्क डन करके देता है. इसीलिए आपका इंजन बहुत गर्म होता है. इट इज वेरी हॉट. रीजन इज कि उसने अपना टेम्परेचर काफी बढ़ाया होता है. फ्यूल का कुछ अमाउंट वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने में वेस्ट करता है, और बचे हुए अमाउंट से आपको काम करके देता है. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Actually it should be delta U. So whatever heat energy you are giving, that will be first used for the change in internal energy, and the remaining will be used for the work done. This is what your first law of thermodynamics says. When the amount of heat Q is added to the system,
delta U, the system uses it to increase its internal energy by delta U, and remaining is lost in the form of work done. Got this? समझा? लिख लो. This is first law of thermodynamics. Done, ma'am. Done? Now, comparing conditions for positive, negative, and zero internal energy. So, let's say this is the system. Again, your pocket is the system. अब हम चीजों को कुछ इस तरीके से समझेंगे. We'll take an example here. समझो आपकी मॉम ने आपको धनिया लाने के लिए या कुछ चीजें लाने के लिए 10 रुपए दिए. एंड शी सेड कि इस 10 रुपए में से अगर कुछ बच जाता है तो दैट विल गो टू योर पॉकेट. आपको मिल जाएगा वो. ठीक है? जस्ट टेक एन एग्जांपल. दिया कितना है आपको? हाउ मच इज गिवन? 10 rupees. 10. 10 रुपीज. अगर आपका काम, जो भी काम है आपका, जो भी वर्क डन है, वो 8 रुपीज में हो जाता है, तो 2 रुपीज विल गेट गो टू योर पॉकेट. आपके Yes. सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. राइट? Yes. वहीं पे अगर आपकी मॉम ने 10 रुपीज दिए और वो बोल रही है कि अब वो इससे ज्यादा कुछ नहीं देगी आपको, मतलब जो भी करना है आपको इतने में काम चलाना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज. और आपका जो भी काम है, जो भी सामान आपने खरीदा, वो 12 रुपए का हो गया, 12 रुपीज. मीन्स नाउ 2 रुपीज यू हैव टू यूज फ्रॉम योर पॉकेट. तो यहाँ पे आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. Decrease. Yes. और अगर आपकी मॉम ने 10 रुपीज दिया और काम भी 10 रुपीज का हुआ है, so there will be no change in the internal energy. Delta U will be 0. Yes. Yes. बढ़ेगा कम होगा. सेम फिनोमेना पे ये काम करता है. समझो सिस्टम को मैंने Q का अमाउंट, जो भी Q का अमाउंट दिया है, ठीक है, उस Q के अमाउंट में हुआ ऐसा है कि
जो भी क्यू का अमाउंट दिया है उससे कम में वर्क डन हो गया है। Q is the amount of money that you're getting and W is the work done which you're going to do for purchasing something. तो of course अगर ऐसा लेती हूँ, अगर आपका Q का अमाउंट आपके वर्क डन से बड़ा है फर्स्ट केस, तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? इट विल Is इंक्रीज, राइट? देख लो जरा, you know delta Q is U plus W, so delta Q minus W will give you U, right? तो अगर डेल्टा Q W से बड़ा है तो आपका U का वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब है पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है। ये फर्स्ट केस है, 10 रुपीज दिया है, उसमें से 8 रुपए का ही काम हुआ है, तो बचा हुआ 2 रुपए आपके पॉकेट में गया है। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी, पैसा बढ़ा है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? yes. दिस इज सिस्टम। वहीं पे सेकेंड केस, जो Q दिया है वो आपके वर्क डन से छोटा है। 10 रुपए दिया और काम 12 रुपए में हो रहा है, और आप बाहर से आप कहीं से यूज नहीं कर सकते, तो अब क्या होगा? आपको अपने सिस्टम से पैसे लगाने पड़ेंगे। Yes. So if Q is smaller than W, then your delta U will be negative, right? जब भी आपके पॉकेट से पैसे लगेंगे, your internal energy will be negative. Keep it in mind. पॉकेट से पैसा गया तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, मेरा लॉस हो रहा है। और अगर थर्ड केस, जितना Q दिया है भाई उतना ही काम हुआ है, वर्क डन इज सेम, ना मुझे पैसा मिलने वाला ना मेरा पैसा लॉस होने वाला है। सिस्टम का डेल्टा U will be 0. Got this point? Yes. So this is what is the condition for the positive, negative and internal, zero internal energy, change in zero internal energy. Draw it and write it away. लिख लो तीनों conditions. इसके बाद कुछ sums करते हैं। Once you're done, let me know. Done with it? हो गया? Done, ma'am. Okay, let's do some sums.
if 104 kilojoule work is done on certain volume of a gas, and if the gas releases 125 kilojoule heat, calculate the change in internal energy. आपको internal energy का change निकालना है. So keep it in mind when you will use a first law of thermodynamics, हम magnitude के साथ जाएंगे. So mod of Q is equals to mod of U plus mod of W. We will use a mod, means we are going to, while solving the sum, we are not going to consider the signs. बाद में हम इसको introduce करेंगे. So mod of U is equals to mod of Q minus mod of W. We need to calculate the change in internal energy. Mod of Q, कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, कितना गैस रिलीज हुआ है? 125. So 125. किलोजूल मतलब 10⁻³ एंड वर्क डन कितना हुआ है? 04. 4 kilojoule. So the gas is releasing delta US 21 kilojoule, right? So what do you think? This internal energy should increase or decrease? मतलब this internal energy should be negative or positive? क्या लगता है? इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव मैम. व्हाई? मैम रिलीज ज्यादा हुआ है ना एनर्जी, मतलब Q इज ग्रेटर देन W. और भी कुछ मैंने समझाया था कुछ देर पहले. क्या समझाया था? गैस रिलीज हो रहा है, हीट गैस रिलीज कर रहा है. गैस इज अ सिस्टम. डू यू रिमेम्बर दिस? यस. और जब सिस्टम हीट रिलीज करता है, हमने कुछ पढ़ा था वहां पे. यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि सिस्टम को हीट दिया है और फिर काम हो रहा है और बचा हुआ अमाउंट इज द इंटरनल एनर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. यहाँ पर काम कुछ तो हो रहा है, वर्क डन तो हो रहा है आपके सिस्टम पे, नो इश्यू. बट सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है. सिस्टम इज रिलीजिंग द हीट. और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है मतलब सिस्टम अपने पॉकेट से पैसा रिलीज कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. सो द इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू Decrease. decrease. So your delta U will be taken as negative. Got my point? Yes. So आपको ये चीज ध्यान देनी है कि what is exactly happening with the things. वो आपको पूछेगा what will be the sign of the internal energy in MCQs. So not only you have to just see the question कि okay work done बड़ा है, work done छोटा है, heat बड़ा है तो I'll get the delta U. Of course you're getting the delta U to be positive because हमने magnitudes के terms में बातें की है. बट अगर मैं कंडीशंस याद करूं यार, मेरा गैस मेरे सिस्टम से पैसा लॉस हो रहा है. सिस्टम गैस इज रिलीजिंग द हीट एनर्जी. सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट एनर्जी. सिस्टम रिलीज कर रहा है इसका मतलब सिस्टम से लॉस हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, समझा. सो हियर द delta U will be taken as negative. If you don't talk in the terms of
मैग्नीट्यूड। क्यू बताओ, क्यू नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव? व्हाट विल बी द साइन फॉर क्यू? द सिस्टम इज रिलीजिंग द हीट एनर्जी, रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्यू विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव रहेगा मैम। Yes, it will be negative. Now what about the work done? उसने तो वॉल्यूम के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं किया, तो वर्क डन पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो? ना वो बोल रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना वो बोल रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन का साइन किस बेसिस पे डिसाइड करो? So it is decided on work done on the system और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो भाई सिस्टम हमारा पॉकेट है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अगर ऑन द सिस्टम हुआ तो you'll take it as positive, and by the system हुआ तो you'll take it as negative if volume is not specified. Keep it in mind. Sorry. Yeah, that is correct. So अगर volume specified नहीं है तो you will go like this. By the system and on the system. So on the system हुआ, I said opposite. On the system हुआ तो you will take it as negative, and by the system हुआ तो you will take it as positive. हमारा सिस्टम काम करेगा तो अच्छा लगेगा हमें क्योंकि it is working. So by the system will be taken as positive and on the system will be taken as negative. So यहाँ पर work is done on a certain volume of a gas. So gas के ऊपर काम हो रहा है, so it will be negative. Did you got my point? Yes मैम। Yes, ma'am. So this is the condition. So write it away, लिख लो ये। मैम हम लोग बस मैग्नीट्यूड ही क्यों कंसिडर करते हैं, मतलब नेगेटिव साइन दे सकते हैं ना हम लोग ऐसे? करने के लिए करते हैं एक्चुअली, बट लाइक व्हेन यू यूज द लॉज तो आपको वहां पे इन जनरल केस लेकर चलना पड़ता है कि इट कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग। सो वी टेक द मैग्नीट्यूड एंड देन वी डिसाइड द साइंस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, बट Yes. like you can decide the sign further also, right? So simply we go ahead with the magnitude and then we decide the sign by seeing the condition of the sum. Done मैम। Done. Let's do one more sum. A gas is contained in a fitted in a frictionless piston, expands against a constant external pressure. This is your textual sum only. External pressure of 1 atmosphere from the volume of, initially the volume is 5 liter and final volume is 10 liter. Gas is expanding. In doing so, it absorbs the thermal energy from its surrounding. That is the heat energy it is absorbing is 400 joule. Determine the change in internal energy. Delta U पूछ रहा है. So, according to the first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U plus delta W. But हमारे पास work done नहीं है. First we need to calculate the work done. So work done is basically PdV, right? And P is 1 atmosphere. 1 atmosphere means it is 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. And dV, change in volume, is 10 liter minus 5 liter. And 1 liter is 10 raised to minus 3 meter cube.
So 10 raised to minus 3. So it is 1.013 into 10 raised to 5. 10 minus 5 is 5 into 10 raised to minus 3. So you'll get the work done from here. You have the heat absorbed. Calculate the change in internal energy. Did you got my point? Yes. करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है. Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done? Work done is 506.5 joules, Okay. and change in internal energy is minus 106.5 joules. Okay. Done with this? Yes. Now, next is the last theory for today is intensive and extensive quantities. Give the next heading as intensive and extensive quantity. Basically, what is intensive quantity? Intensive quantity is a internal quality. Internal quality in the sense, जैसे कि इंसान की इंटरनल क्वालिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को कोई इंसान बहुत झूठ बोलता है, तो जब वो पतला होगा तब भी वो झूठ बोलेगा, और जब वो मोटा होगा तब भी वो झूठ बोलेगा. मतलब उसके मास से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी इंटरनल क्वालिटी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इंटेंसिव क्वांटिटी इज समवॉट रिलेटेड टू द इंटरनल क्वालिटी. मास से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऐसी quantities which do not depends on mass are called intensive quantity. Got this point? For example,
टेम्परेचर, अगर आप एक किसी सराउंडिंग का या किसी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो आप छोटा सा सिस्टम लेकर मेजर करो या बड़ा सा सिस्टम लेकर मेजर करो, उसका जो टेम्परेचर इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. डेंसिटी, अब आप बोलोगे मैम डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है का, और आप बोल रहे हो मास डिपेंडेंसी नहीं है डेंसिटी की. आप एक हनी का डब्बा लो, डाबर हनी का, चाहे आप छोटा डब्बा लो या उसमें से सिर्फ या बड़े से डब्बे में से एक चम्मच हनी निकालो या फिर पूरे हनी का डेंसिटी देखो, वो डेंसिटी ऑफ दैट हनी इज इंटरनल क्वालिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes. सो जब आप हनी की क्वालिटी चेक करते हो आप थोड़ी पूरा डब्बा खोलकर उसको ओपन करके देखते हो, आप क्या करते हो सिर्फ एक चम्मच निकालते हो और देखते हो भाई कि वो हनी कैसा दिख रहा है. सो वो चम्मच के हनी की जो डेंसिटी होगी वही पूरे डब्बे की डेंसिटी होगी. तो डब्बा बड़ा या छोटा करने से डेंसिटी चेंज नहीं हो जाती, डेंसिटी इज एन इंटरनल क्वालिटी. हाँ, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स करे दैट पॉइंट इज डिफरेंट, बट बड़ा डब्बा लेने से या छोटा डब्बा लेने से आपकी डेंसिटी में फर्क नहीं आना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. सो सच क्वांटिटीज जिसको साइज से मैटर नहीं करता, एक्चुअली मास टर्म इज नॉट करेक्ट, साइज टर्म इज मोर बेटर. सो जिन क्वांटिटीज को साइज से मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता, they are called as intensive quantity. Size is a much better word to use instead of mass. Mass बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा. So quantities which do not depend on the size of the system is considered to be intensive quantities. But extensive quantities, ये वो quantities होती हैं जो मास नहीं, जो साइज पे डिपेंड करती है. It depends on size. जैसे कि मास इटसेल्फ, इसका एग्जांपल मैं मास ले सकती हूँ. छोटा डब्बे का ले रहे हो तो उसका मास कम होगा, बड़ा साइज लोगे तो मास ज्यादा होगा. सो मास वर्ड यूज करना ही गलत होगा. आई शुड यूज द वर्ड साइज. साइज डिपेंडेंसी है. अगर क्वांटिटी साइज पे डिपेंड नहीं करती है तो इट इज इंटेंसिव क्वांटिटी. अगर क्वांटिटी साइज पे डिपेंड करती है तो इट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी. एंड हियर एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज मास. Mass is one of the examples. Did you got my point? Yes, मैम ma'am. डेंसिटी, बोल बेटा. मैम डेंसिटी पार्ट एक बार रिपीट करो ना. मैंने कहा अगर तुम छोटे से डब्बे का हनी देखो या बड़े साइज के डब्बे का हनी देखो, हम I am comparing it with the size. Keep it in mind. I said mass, which is wrong. I have to use the term size. Mass नहीं बोलना चाहिए था. Size is a better word to use. I can say size is a better word to use. So आप छोटे साइज वाला हनी का डब्बा लाओ या बड़े साइज वाला हनी का डब्बा लाओ, जो हनी के अंदर डेंसिटी है, जो हनी की डेंसिटी है वो सेम ही रहने वाली है. तो अगर आपको हनी की डेंसिटी देखनी है तो आप एक चम्मच डेंसिटी निकालकर, एक चम्मच हनी निकाल कर देखते हो, आप पूरा डब्बा नहीं खोलकर पलट कर देखते हो. तो उसकी डेंसिटी को, उसकी थिकनेस उसके डब्बे के साइज से वेरी नहीं करती. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम. So intensive quantity do not depends on size. Extensive quantity depends on size, जिसका example is mass. छोटे डब्बे का मास अलग होगा, बड़े डब्बे का मास अलग होगा. Got my point? यस मैम. So this is what is intensive and extensive quantity. Make it again very clear that it depends on size. हम size comparison के साथ चल रहे हैं. जो size पे depend नहीं करता intensive है, जो size पे depend करता है वो extensive है. मास वर्ड मैंने गलत यूज किया था. यू हैव टू यूज साइज. गॉट इट? Yes. Got this everyone? So we'll stop it here. We'll continue from here from the next lecture. Bye everyone. Take care. Bye, ma'am.